سب سے پہلے خالد محمود صاحب آپ کی طرف سر آؤں گا، جو موجودہ حالات ہیں ان میں آج کل جو پراپرٹی کی صورتحال ہے سر وہ کیا ہے، اور آپ اس میں کوئی بہتری پہلے سے بہتری دیکھ رہے ہیں کہ یا پہلے سے بھی زوال پذیر ہے؟ بہتری کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ 2016 سے ناروا سلوک حکومت کی طرف سے کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آنے والا ٹائم جو ہے نا پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں بہتری کی طرف نظر آتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات، اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہوں، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان میں ایک عام بندہ اس کی پہنچ میں ایک گھر بنانا یا زمین لینا بہت دور کی بات، یعنی کہ خواب رہ گیا، وہ اس ریشو سے جو سیلری پرسن ہے اس کی انکم اس حساب سے نہیں بڑھتی جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو وہ اس کے لیے تو خواب ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی بہتری کے چانسز، وہ اس لیے بھی جس طرح اس وقت خلیجی جنگ لگی ہوئی ہے، جو پاکستان کے اندر حالات پہلے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو سایہ ممالک ہیں اس کے اندر ہم انویسٹ کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہت سیف انویسٹمنٹ ہوگی۔ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں مشرق وسطیٰ میں جو حالات اس جو تنازع چل رہے ہیں یہ انشاءاللہ جیسی حل ہوں گے یہ پاکستان میں پیسہ آئے گا اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں پہلے کی طرح انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خالد چودھری صاحب، جس طرح دبئی کو ایک ہب سمجھا جاتا تھا پراپرٹی کے حوالے سے بھی اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی، اب وہاں سے انویسٹر نکل چکا ہے، تو اس نے رخ تو کرنا ہے وہ پاکستان کی طرف کرے یا کسی اور ملک کی طرف کرے، لیکن 2000 پہلے سے جس طرح ہمارا پراپرٹی سیکٹر تھا جس میں اوورسیز ہی نہیں پاکستانی بھی بہت بڑھ چڑھ کے پیسہ لگاتے تھے، تو وہ انویسٹر یا وہ سرمایہ کاری اس سیکٹر میں رہ گئی ہے۔ اب ریل جو ہے حالات وہی ہیں۔ دیکھیں جی، پچھلے 3-4 سال سے نو ڈاؤٹ ہمارا جو اوورسیز پاکستانی انہوں نے پیسہ پاکستان سے نکالا ہے اور وہ اپنے ملک میں لے گئے، اور سب سے زیادہ پیسہ اگر پاکستان کا نکلا تو وہ دبئی میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، کوئی اس میں شک نہیں، وہ ببل تھا اس وقت اور وہ ببل پھٹنا تھا، وجہ کوئی بھی بنے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو 3-4 سال سے جو پراپرٹی بڑھی ہے دبئی کی تو وہ ان ایکسپیکٹڈ تھی، تو وہ بھی ریئل نہیں تھی، کیونکہ جو پیسہ وہاں پہ گیا، جب جیسے پیسہ وہاں پہ گیا تو وہ ساری ببل بنا، تو ببل پھٹ گیا، ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ سیف سٹی۔ پاکستان میں بھی جو پراپرٹی سیکٹر کو دکھایا جاتا ہے، قیمتیں دکھائی جاتی ہے، یہ مصنوعی ہے، یہ پیدا کرتی ہے، یہ حقیقت پر مبنی بھی ہے؟ حقیقت پہ مبنی ہے، کیونکہ جو ریئل جو ببل تھا وہ پاکستان میں 2016 کے بعد اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جس طرح سے پہلے ہوئی تھی۔ 9/11 کے بعد پاکستان میں بہت پیسہ آیا، بدقسمتی کسی دوسرے سیکٹر میں نہیں جا سکا، کیونکہ کسی انڈسٹری میں نہیں گیا، کسی اور جگہ پہ نہیں گیا، تو یہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہی انویسٹمنٹ ہوئی تھی، اور جب آپ کی انویسٹمنٹ ضرورت سے زیادہ ہو تو ڈیفینیٹ وہ ببل بنتا ہے، تو اب یہ ریئل بزنس ہو رہا ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اب جو جینون جسے آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً جینون ہے، اب تھوڑی بہت اگر کوئی اس میں انشاءاللہ تیزی آئے گی تو پاکستان کے حالات آنے والے ٹائم میں بہتری کی طرف۔ جو صاحب پراپرٹی سیکٹر کو اس انڈسٹری کا درجہ بھی دیا گیا اس سیکٹر کو، اس کے باوجود بھی یہ پنپ نہیں سکا، کیا ٹیکسز کی وجوہات تھی، زیادہ ٹیکسز لگائے گئے حکومت کی طرف سے، یا کچھ شرائط ایسی رکھی گئیں جن کی وجہ سے اس سیکٹر میں جو سرمایہ کاری رک گئی؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جب مارکیٹ کے اندر پاکستان کی پوری یعنی کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ جتنا ظلم ریئل اسٹیٹ کے اوپر انہوں نے کیا اتنا کسی سیکٹر کے پہ نہیں ہوا، جتنا انہوں نے ٹیکسز بڑھائے ہیں۔ ظلم سے کیا مراد ہے جو صاحب، آپ ظلم سے کیا مراد؟ ٹیکسز لیتے ہیں، ٹیکسز کی وجہ سے دیکھیں نا، ریشو ٹیکسز کی بہت زیادہ بڑھا دیا، انہوں نے اتنا ٹیکسز بڑھا دیا۔ ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ 2016 کے بعد فائلر نان فائلر کا بڑا کنسپٹ چلا، اب نان فائلر کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پراپرٹی بنا لے، کہ اس کے اوپر ہر طرح سے ٹیکسز۔ اگر پیسہ بھی اس کو پاس بلیک منی بھی ہے تو جو شرائط ہے لیکن وہ اس کے مطابق بھی نہیں لے سکتا۔ اب FBR رکاوٹ ہے سب سے بڑی بات، کہ وہ ان کو فائلر بنانے میں اب تک ناکام رہا ہے، اور انہوں نے ان کو اس طرح سے فائلر بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اتنا خوف طاری کر دیا گیا نان فائلر کے اوپر، تو وہ خوف زدہ ہو کے بجائے وہ فائلر بنتا ہے تو وہ اس نے بہتر سمجھا کہ یار میں یہ پیسہ کسی اور سیکٹر میں لے جوں، مثال کے طور گولڈ میں چلا گیا پیسہ آپ کا، مطلب ایسی نان پروڈکٹیو فیلڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں پیسہ زیادہ انویسٹ، ڈیڈ انویسٹمنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن پراپرٹی سیکٹر میں تو بہت سی ڈیڈ انویسٹمنٹ تھی جس کو حکومت نے 7E کے ذریعے نکالنے کی اب کوشش کی ہے۔ دیکھیں جو انہوں نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی کہ انہوں نے یہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو پیکیج دیا، وہ پیکیج کیا تھا کہ آپ نے اگر 236 کے کم کیا تو 236E کو بڑھا دیا، یعنی وہ تو ایک انہوں نے ایسے ہی کیا کہ پہلے 3% 236 تھا، 237 بھی 3 تھا، انہوں نے ایک کو 1.5% کر دیا، ایک کو 4.5% کر دیا، تو یعنی کہ انہوں نے ڈالا جو خواہ وہ سیلر تھا جو بائر پہ، تو لیکن وہ بات تو وہی تھی، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں۔ خالد صاحب، آپ سیکٹر میں آج تک جتنے بھی قوانین فراڈ کو روکنے کے لیے اوورسیز کے پیسے کو محفوظ بنانے
بنانے کے لیے हाउसिंग सोसाइटीज में जो फ्रॉड है इनको रोकने के लिए जितने भी आज तक कवानीन बनाए गए आप समझते हैं वो मौसर है? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हुकूमत पंजाब इसके अंदर बहुत काम कर रही है, इसको रेगुलेट अथॉरिटी बना रही है। उन्होंने प्रॉपर्टीज के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, खासतौर पे एग्रीकल्चर लैंड का जितना अच्छा काम है, ये समझे देखें जो चीज़ें हुकूमत की तरफ से अच्छी हो रही हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह अभी ग्रीन सर्टिफिकेट का अजरा हुआ है, अब इसी तरह हमारे जो अदालतों के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो केसेज हैं वो लैंड से मुतल्लिक है, और ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर लैंड है। और उसमें सबसे बड़ा जो इशू था इस वक्त, जो आज से 74, 75, 80 साल से जो चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, वो था बंटवारे का, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी विरासती, उसकी विरासत नहीं होती थी, वो इसी तरह आगे तकसीम हो जाती, आगे तरह वो सेल हो जाती। अब इन्होंने जो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा है, उसके अंदर जो कवानीन बनाए हैं, तो मैं ये समझता हूँ बहुत खुशाइंद है सर, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा जो प्राइवेट डेवलपर्स का इन्होंने इसको रेगुलेट करने का इन्होंने सोचा है और उसके मतलब जो पॉलिसीज बना रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ वो इतना अच्छा इकदाम है। जैसे कि अभी देखें जितना भी फ्रॉड हुआ है इस वक्त, आप समझ रेगुलेट करने का जो हुकूमती निज़ाम है वो मौसर है। वो इस वक्त जो इसके ऊपर जो काम हो रहा है, अभी उसकी जो रेगुलेटर अथॉरिटी बनी नहीं है, वो बना रहे हैं और इसको लेके आना चाह रहे हैं कि इस नेटवर्क में आए। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डेवलपर आता है, कानून तो मौजूद था कि पहले भी वो जमीन पूरी करेगा, बाकायदा वो NOC लेगा, उसका मतलब सारा, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता था। अब इन्होंने उसको जरा थोड़ा सा और सख्त किया। मिसाल के तौर पे अभी जो हुकूमत कवानीन बनाने जा रही है, जिसके ऊपर ये काम भी हो रहा है, उसके ऊपर प्रपोजल भी चल रही है, कि जो कंसेप्ट फाइल का आया जब से, तो सबसे बड़ा फ्रॉड आज प्राइवेट डेवलपर के अंदर, जो प्राइवेट जमीनों के अंदर, वो तो सबसे ज्यादा फाइल की मद में हुआ है कि फाइलें उतनी जमीन नहीं होती थी जितनी वो सेल हो जाती थी। लोगों का पैसा डूबा, लोगों का एतमाद रियल एस्टेट से उठा, और जब लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जो फ्रॉड होता है तो वो डायरेक्टिव हो जाते हैं। वो बहाल इंशाल्लाह जरूर होगा, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ी प्रपोजल है कि कोई भी फाइल का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, प्लॉट का कंसेप्ट होना चाहिए, ताकि नंबर के साथ प्रॉपर्टी सेल होनी चाहिए, वो कागजों के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो रेगुलेट हो कि कितनी जमीन इनके पास थी और कितने प्लॉट इन्होंने बनाए और कितने प्लॉट आगे वो सेल के लिए मार्केट में देते हैं। तो ये अगर चीजें हो जाती हैं तो सब इस मौजूदा हालात में भी ऐसे लोगों ने सोसाइटीज काटी हुई हैं जिनको करोड़ों का अरबों का फ्रॉड करके बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, नैब में केस चल रहे हैं। अगर हमारे कानून इतने मौसर हैं तो फिर फ्रॉड क्यों आम बंदे का पैसा डूब रहा है, क्यों? यही है ना, बदकिस्मती है ना, हमारे अदारे तो मौजूद थे लेकिन किसी ने रेगुलेट नहीं किया। अब क्या जरूरत थी हुकूमत को अदालतें होने के बावजूद CCD बनाने की, क्या वजह थी? क्योंकि हमारे वो सारे अदारे डेड हो चुके हैं, वो FBI डेड हो चुका है इस वक्त, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि फाइलर पर। अब मुझे ये बताएं सर कि मुझे ये अगर बताया जाए कि फाइलर और नॉन फाइलर में कोई फर्क नहीं है, तो मैंने सिर्फ पैसे ज्यादा दे के मैं नॉन फाइलर रहूंगा, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं फाइलर भी बनूं और मुझे हुकूमत सहूलत भी कोई ना दे, और प्लस ऊपर मेरे ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, हर 2 साल बाद मेरे केस खुले हों। चौधरी साहब, प्राइवेट सेक्टर में ब्लैक मनी रह सकती है, अब इन्वेस्टमेंट हो सकती है ब्लैक मनी की, आप समझते हैं 2018-17 की तरह फिर हुकूमत को एमनेस्टी देनी चाहिए सेक्टर के लिए? नहीं सर, आप देखें 2016-17 के बाद मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त, पहले ये था कि ब्लैक मनी बहुत ज्यादा थी, अब तकरीबन पाकिस्तान अंदर 58 शहर ऐसे FBR ने जिसके रेट तकरीबन मार्केट के बराबर कर, वो जो रेट रियल मार्केट का है वही FBR का रेट रखा गया। लेकिन बदकिस्मती क्या है सर, बात वही आ गई ना कि उसकी जो परसेंटेज है वो कम नहीं की, उन्होंने टैक्सेस रेशियो वही रखी, लेकिन उसकी जो FBR वैल्यू थी वो बढ़ाते गए। लेकिन हमारा ये इशू हमेशा से इनके साथ रहा है कि आप जब तक परसेंटेज कम नहीं करेंगे, उसको जब आप तक 1% पे नहीं लेके आएंगे, 2%, अब 18% या 20% पे तो नहीं ट्रांजेक्शन हो सकेगी। सरमायादार सर उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक उसको प्रॉफिट उसके अंदर नजर नहीं आएगा। अगर सारे का सारा प्रॉफिट वो सारा हुकूमत नहीं लेके जाना है, वो सेलर के ऊपर भी वही टैक्सेस हैं, बायर के ऊपर भी इतने टैक्सेस हैं, अब वो मिला के अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो 20, 22, 25% टैक्स बन जाता है। तो कौन है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा, सिवाय उन लोगों के जो मजबूरी के तहत अपना घर बनाना चाहेंगे, जब उसकी मजबूरी होगी कि वो उसके अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है। टैक्स देना लोगों के लिए मसला नहीं है, मसला ये है अब जो हुकूमत खरीदने से पहले बताएं ये पैसा आपके पास आया कहाँ है। अगर पहले ही वो पैसा उसके पास है, पहले इन्वेस्टमेंट तो उसको करने दें, वो आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा, खुद पकड़ लेंगे आप उसको। हुकूमत के लिए या FBR के लिए बंदे को पकड़ना मुश्किल काम है। अब जो हालात जा रहे हैं, जितने कवानीन आ गए हैं, जितना आर्टिफिशियल आ चुकी है, अब तो किसी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है। चौ साहब को वही बात आ गई ना सर, आके अदारा एक्टिव नहीं है, अदारा चाहता नहीं है कि आप फाइलर बनने, अदारा चाहता नहीं है कि आप इस नेटवर्क में आए। खालिद साहब, आपने हमारे एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी, आप समझते हैं सैलरी परसेंट आजकल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स वो दे रहे हैं, जब तो प्रॉपर्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा होता था, हुकूमत के पास टारगेट पूरे हो जाते थे, रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं आते थे। अब रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है, टैक्स भी अदा भी पूरे नहीं हो रहे, इसकी क्या वजूहत है? ये इसको इग्नोर करना है प्रॉपर्टी सेक्टर को? नहीं, वो उसकी 2 वजूहत है सर। एक तो ये है कि वो काम करना नहीं चाहते, जितने भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो कमरों में बैठ के पॉलिसीज बनाती हैं, वो स्टेक होल्डर को साथ बिठाती नहीं है। देखिए ना, जैसे पहले आपने बात की है कि वो पहले रेवेन्यू बहुत इकट्ठा
बैठा होता था, क्या वजह थी कि ट्रेडिंग होती थी। कोई भी दुनिया का सर आम भी बंदा जो है, आम फहम अगर बात की, जब तक सेल बढ़ेगी तो उसके टैक्सेस भी बढ़ेंगे। आप समझते हैं कि यार जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी में जो फंसा है उसी को आपने काटना है, उसी की गर्दन के ऊपर आपने रख के पूरे टैक्स करना है, तो कभी भी नहीं हो सकता। खुली छूट देनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देंगे तो ट्रेडिंग बढ़ेगी, ट्रेडिंग बढ़ेगी तो आपका टैक्स रेवेन्यू जो है ना वो पूरा होगा। जब आप नहीं बढ़ाएंगे लोग कैसे आएंगे, आप उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, लोग कैसे पैसे। आप देखिए मैं बताऊँ, मेरे बहुत से ओवरसीज क्लाइंट है, मैं DHA में काम करता हूँ, DHA लाहौर के अंदर काम करता हूँ। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आज DHA लाहौर के अंदर आप हर रियल्टर से जाके जब बात करेंगे वो कहेंगे जो हमारा ओवरसीज क्लाइंट था वो इधर से पैसा निकाल के दुबई में लेके गया। लेकिन अब दुबई का जो हाल हुआ है, तो दुबई में मौजूद हालात हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट दोबारा निकलना शुरू, बहुत डाउन हो गया वहाँ पे। इसका फायदा हुकूमत को उठाना चाहिए, ये इंशाल्लाह बैठाना चाहिए। अब ये बड़ा अच्छा मौका है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। जितना भी हालात आज इस वक्त जो हमारे मशरक़ वस्ता में हुए हैं, तो सब जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अगर वो ये पॉलिसी आज भी बदले, आज उसके ऊपर रेशो कम कर दे, रियल स्टेट के ऊपर जो टैक्सेस की रेशो है वो कम कर दें, तो ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। ट्रेडिंग बढ़ेगी तो पैसा भी आएगा, और हमारा पाकिस्तान में जब पैसा आएगा तो हमारा यकीनन वो हमारी इकॉनमी को उसका फायदा पहुंचेगा। खालिद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? प्राइवेट सेक्टर का आपका बहुत पुराना तजर्बा, आपने पूरी जिंदगी इसमें लगा दी। अगर आपको हुकूमत इख्तियारात दे, आपको वजीर बनाए, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री में बेहतरी लानी है, और इसको ऐसी बेहतरी लानी है बंदा, आम बंदा 20 लाख रुपए सैलरी लेने वाला भी मकान ले सके, प्रॉपर्टी खरीद सके, तो आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो बात जो मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जब तक आप उसके ऊपर टैक्सेस कम नहीं करेंगे, उसको लोगों को आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो सबसे मेन मसला तो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। कौन सा टैक्स सबसे ज्यादा खतरनाक है जो हुकूमत खत्म करना चाहिए? गेन टैक्स है, वो भी बहुत ज्यादा है, उसको 1% होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी है, उसको कम होना चाहिए। आपकी वो दूसरी प्रोवेंशियल दूसरे टैक्सेस हैं, आपके जो कमेटी के टैक्सेस हैं, सारे टैक्सेस को अगर मिलाया जाए तो मैंने बताया कि ये 18 से 22-25% तक चले जाते हैं मुख्तलिफ जगह पे जाके। तो अगर इनको आप 1% पे ले आए, आप FBR का भी ले आए, आप इसका सूबाई टैक्सेस भी कम कर दें, ट्रेडिंग नहीं बढ़ेगी। ट्रेडिंग बढ़ेगी तो टैक्सेस बढ़ जाएंगे, और क्या होगा कि पैसा जब प्रॉपर्टी में आएगा तो प्रॉपर्टी का पैसा रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा और लोगों को भी टेंशन होगी। तो आम बंदा भी जो प्रॉपर्टी खरीदेगा उसको पता होगा यार अगर मैं थोड़ी प्रॉपर्टी ले भी लेता हूँ, मैं किस्तों पर प्रॉपर्टी लेता हूँ, और कल को वो थोड़ी महंगी होगी तो मैं प्रॉफिट लेके आगे निकल जाऊँगा, मैं घर बना सकूँगा। अब तो जो बंदा जिसके पास पैसे हैं वो तो सोच ही नहीं सकता कि मैं जो पैसा, वो कहता है मैं पैसा गोल्ड में तो लगा दूंगा, मैं फॉरेन करेंसी खरीद लूँगा, मैं लॉकर भर लूँगा, लेकिन मैं प्रॉपर्टी नहीं लूँगा, क्योंकि वो ना फाइलर होना चाहता है, ना वो फाइलर बनाना चाहते हैं इसको। जब तक सर आप नए फाइलर्स नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक आप फाइलर का गला घूंटते रहेंगे, तो ये इकॉनमी और नीचे जाएगी, ये कभी भी आगे नहीं। आप समझते हैं फाइलर नॉन फाइलर कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए? जी होना चाहिए, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ टैक्सेस होने चाहिए, फाइलर सबको होना चाहिए, लेकिन फाइलर हुकूमत खुद नहीं बढ़ाना चाहती। वो इतना खौफ ज़्यादा कर दिया उन्होंने। देखिए आप आए दिन जो जिनके फाइलर हैं, आए दिन उनके ऑडिट खुले होते हैं, उनको खौफ ज़्यादा किया जाता है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस सबसे ज़्यादा है। जैसे आपने कहा सैलरी पर्सन है, वो कहाँ भागेंगे बेचारे, उन्होंने तो टैक्सेस देना है। तो जो बिजनेसमैन तबका, जो आप देखें, गवर्नमेंट को नहीं पता कि जो गोल्ड की दुकानें हैं तो वहाँ करोड़ों अरबों रुपए का गोल्ड ट्रेड होता है, कौन सा टैक्स देते हैं, कौन सा वो नेटवर्क में है, कोई पेपर उनका है। आपका शालमी चले जाएँ, आपका अकबरी मंडी में चले जाएँ, तो वहाँ पे अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन होती है, गवर्नमेंट को नहीं पता, वो FBR की नाक के नीचे हो रहा है सब कुछ। सही कह रहे हैं चौधरी खालिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है, हुकूमत अगर रेवेन्यू इकट्ठा करना चाह रही है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आज जो हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताई भी हैं और मुतालबात भी किए हैं, हुकूमत कर भी सकती है। अगर जितने भी आप आसानियां पैदा करेंगे टैक्स पेयर के लिए, उतना ही ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा भी होगा और ये मुल्क भी तरक्की करेगा। और क्योंकि टैक्स हमेशा खौफ से इकट्ठा तो किया जा सकता है, लेकिन टैक्स बेस को खौफ की लामत में नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर टैक्स बेस को बढ़ाना है तो लोगों से प्यार करना पड़ेगा, उनको एतमाद में लाना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।